This audio is a copyright of Language Academy, Australia. For more dialogues, visit our website www.languageacademy.com.au. This is a dialogue between an English speaker, Ben, and Miss Mia regarding some concerns of child abuse. The dialogue begins now. Good morning. We have concerns in regard to your son. He has bruises on his back. Please explain how he got them. सुबह बखैर। हमारे आपके बेटे के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसकी कमर पर खराशें आई हुई हैं। बराए मेहरबानी बताएं ये कैसे हुआ। मैं यकीन से नहीं कह सकती कि ये कैसे हुआ। हो सकता है वो खेलते हुए गिर गया हो। मैं हमेशा अपने काम में मसरूफ़ रहती हूँ। I am not sure. How did they happen? Maybe he fell while playing. I am always busy with my work. I have received multiple complaints about his bruises. You should get him checked by a doctor if the bruises are not going away. मुझे कई मर्तबा इन खराशों के बारे में शिकायत मिल चुकी हैं। अगर ये खराशें ख़त्म नहीं हो रही तो आपको इसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसे किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। यह हमारा ख़ानदानी मसला है। आपकी तंजीम इसमें क्यों दखल अंदाजी कर रही है? I do not think we need to get him checked from a doctor. This is our family matter. Why is your organisation interfering in this? This is not a personal matter anymore. It was reported by your child's school, and they are afraid that this is a matter of child abuse, which is illegal in Australia. अब ये एक ज़ाती मसला नहीं रहा। इसकी शिकायत आपके बच्चे के स्कूल की तरफ से आई है और इन्हें डर है कि ये बच्चों पर तशद्दुद का मामला है जो कि ऑस्ट्रेलिया में गैर कानूनी है। क्या ये गैर कानूनी है? आप कैसे कह सकते हैं कि ये बच्चों पर तशद्दुद का मामला है? मैं इसे नज़्म ज़ब्त सिखा रही हूँ। एक माँ होने के नाते ये मेरा हक है। Is this illegal? How can you say that this is child abuse? I want to teach him discipline. I have this right being his mother.
Causing physical harm to your child is not how one should teach discipline. This is not acceptable. You may face serious criminal consequences under Australian law if you don't improve soon. अपने बच्चे को जिस्मानी नुकसान पहुंचाना ऐसे नहीं है कि किसी को कैसे नज़्म ज़ब्त सिखाया जाए। ये कानून के काबिल कबूल नहीं है। अगर आपने अपने आप को बेहतर ना किया तो ऑस्ट्रेलियाई मुताबिक आपको सख्त मुजरमाना नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तो अब आप मुझे सिखाएंगे कि मुझे अपने बच्चे की तरबियत कैसे करनी है। जब मैं छोटी थी तो मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाया कि बड़ों का अदब कैसे किया जाता है। अगर मैं इसे नहीं सिखाऊंगी तो ये खुद को बर्बाद कर बैठेगा। How can you teach me to discipline my child? When I was young, at that time, my parents taught me how to respect others. If I won't teach him, he will ruin his life. We are not asking you to stop teaching him, but there should be a certain way to do this. We are asking you to stop your punishment ways. If you don't, then you can also be charged. हम आपको इसे सिखाने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई मुनासिब तरीकाकार होना चाहिए। हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने ये सज़ा देने के तरीके बंद कर दें, और अगर आपने ऐसा ना किया तो आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की जा सकती है। मुजरमाना नताइज से आपकी क्या मुराद है? मैं तो इस पर सिर्फ सख्ती कर रही हूँ और चाहती हूँ कि ये अपने आप को बेहतर कर ले। What do you mean by criminal consequences? I am just trying to be harsh with him and want him to improve. You can be sent to jail if found guilty of causing him physical harm. At last, if the circumstances don't improve, you can lose your custody over your son. अगर आप इसको जिस्मानी नुकसान पहुंचाने की मुर्तकिब पाई गई तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है। आखिरी बात, अगर हालात बेहतर ना हुए तो आप अपने बेटी के तहवील से भी महरूम हो सकती हैं। क्या मैं इसके लिए जेल जा सकती हूँ? मैं इस बारे में नहीं जानती थी। आइंदा मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, और इसके अलावा मैं अपने बेटे को किसी की सरपरस्ती में छोड़ना नहीं चाहती।
Can I go to jail for this? I did not know about this. I will never do this again. I promise you. Apart from this, I do not want to leave my son with any guardian. I hope you understand this situation. Assaulting someone is a very serious crime, and you shouldn't do this anytime. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सूरत हाल का अंदाज़ा होगा कि आपको इस सूरत हाल की समझ आ गई है। किसी पर जिस्मानी हमला करना बहुत बड़ा जुर्म है और आपको ये कभी नहीं करना चाहिए।